Hello students, we are back with another video on the topic sound from class 8. So, when we say sound, what first comes in our mind is what is sound? What exactly is sound? So, it is a form of energy. Sound is a form of energy which is created by a vibrating object. A vibrating object creates a sound. Like if we take example of tabla, then the stretch membrane in the tabla produces the sound. In guitar, the strings, they are the vibrating element. They create the sound. Like a very simple example if we take, it is of rubber band. A rubber band creates a sound when we move our finger through it. So, a sound is a form of energy which is created by a vibrating object. Now, sound is created by following methods. So, what are the methods from which the sound is produced are? First one is by vibrating strings, like in the case of guitar, like in the case of sitar. Second, by vibrating air columns, like in the case of flute. The air columns present in the flute allows the air to pass through it. That's why the sound is produced in the case of flute. Next is by vibrating membranes, like I gave you example of tabla. In the tabla, the stretch membrane produces the sound. Next is by vibrating plates. By vibrating plates means like in the case of a bicycle, when the when the bell of the bicycle rings, it is the example of vibrating plate and it creates the sound. Now we will study the propagation of sound. So what do you mean by propagation? Propagation means the medium through which the sound is traveling. That medium is known as propagation medium. So sound always need a propagating medium to travel through it, like water, air, whatever the medium should be available for the sound. If medium will not be there, then there is no possibility of sound to travel through it. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ एक ग्लास रूम का, किसी रूम में ग्लास विंडोज़ हैं, चारों तरफ से ग्लास पैनल्स लगा दिए हमने उसमें, और फिर अंदर से कोई इंसान अगर बोलता है तो क्या जो बाहर वाला इंसान है उसे सुन सकता है? That person will not be audible to the person outside the room because there is no medium for the sound to travel, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम होता है, इस वजह से कोई भी पर्सन ऑडिबल नहीं होता है. So a sound, the basic thing is sound always need the medium to travel. When an object vibrates, then the air around it also vibrates in the same rhythm and carries the sound. जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, दैट मीन्स इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द साउंड. जब वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसके आसपास जो एयर मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, वो भी उसी रिदम में वाइब्रेट करना शुरू कर देती है जिस रिदम में वो साउंड निकल रहा होता है, और उस साउंड को कैरी करके लेकर जाती है सुनने वाले के कान तक. तो ये तरीका है प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है. So the next question arises, can sound travel from air, from gas, liquid and solid? क्या solid, liquid, gas में भी sound travel कर सकता है? अगर हम एग्जाम्पल ले, we take the example of wood और brick, क्या उसमें कभी sound travel कर सकता है? No, that means the sound cannot travel through the solids. If we take the example of gas, तो air भी एक तरह की गैस ही होती है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल कर सकता है, और लिक्विड्स में भी साउंड ट्रैवल कर सकता है, बट इन केस ऑफ सॉलिड साउंड कैन नॉट ट्रैवल. सो दीज आर द मीडियम थ्रू विच द साउंड कैन ट्रैवल. लेकिन फिर भी अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड में समहाउ साउंड थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकता है, बट इन केस ऑफ वैक्यूम इज द केस व्हेन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एयर. जहाँ पर कोई भी एयर नहीं होती है उस एरिया को हम वैक्यूम कहते हैं. तो साउंड उसमें ट्रैवल नहीं कर सकता, बट समहाउ इट कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एंड एज वेल एज फ्रॉम गैसेस, बट नॉट इन अ वैक्यूम्ड रूम. साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन दैट. नाउ वी विल स्टडी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं. If we touch our throat, then we will able to see something here which moves around, जिसको हम बोलते हैं larynx, जिसकी वजह से हमारे थ्रोट में साउंड प्रोड्यूस होती है, वॉइस प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ दिस larynx. हमारे इसमें ईसोफेगस में
वोकल कॉर्ड्स होती है, देयर आर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन द ईसोफेगस, जो आपस में वाइब्रेट होती हैं जब हम कुछ भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। द ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस साउंड बाय यूजिंग द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को लिरिंग्स भी कहते हैं और वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। देन विच इज़ कॉल्ड लिरिंग्स। तो वॉइस बॉक्स के थ्रू हमारे अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जब ये वोकल कॉर्ड आपस में वाइब्रेट करना शुरू करती हैं, दैट मीन्स वो आपस में इस तरह से वर्क करती हैं कि हमारे अंदर साउंड प्रोड्यूस हो। इस तरह से ह्यूमंस के अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड। What is the speed of sound? In air, it is 340 meter per second. In water, it is 1500 meter per second. In solids, it is 5000 meter per second. तो इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड जो है वो सबसे कम एयर में ट्रैवल कर पाता है। उसकी फ्रिक्वेंसी जो सबसे कम होती है वो किस में होती है? एयर में, 340 मीटर पर सेकेंड। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है 5000 मीटर पर सेकेंड। एंड इन वाटर इट इज़ मीडियम लाइक 1500 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एग्जाम्पल लें इन द वाटर, डॉल्फिन्स का या फिशेस का, वेल्स का, तो वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इवन वे दे आर द फारदेस्ट, तब भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं। क्यों कर पाती हैं? बिकॉज साउंड कैन ट्रैवल अ वे फार बेटर मोर देन द इन कंपैरिजन टू एयर। वाटर में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एयर, और सॉलिड्स में उससे भी ज़्यादा होती है। अगर हम एग्जांपल लें सॉलिड्स में अगर साउंड का, स्पीड ऑफ साउंड का, तो अगर हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन जब उसकी साउंड आती है, हमें हॉर्न आता है, तो इट ट्रैवल थ्रू द एयर, वो हम तक बहुत लेट आता है। बट अगर हम ट्रेन की पटरी पर कान लगाकर सुनते हैं तो क्या होता है, उसकी आवाज़ हमें बहुत देर पहले ही पता चल जाती है कि ट्रेन आने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि साउंड जो है वो स्टील या आयरन की ऑब्जेक्ट्स में बहुत तेज़ी से ट्रेवल करता है। सो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड इज इन द सॉलिड्स, देन इन द वाटर एंड लास्टली इन द एयर। नाउ विल मेक अ कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड। तो बारिश के दिनों में आपने बहुत ही कॉमन फिनोमिना देखा होगा जो है लाइटनिंग एंड थंडरिंग। बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जब बिजली चमकती है तो हमें बिजली चमकती हुई पहले दिखाई दे जाती है, लेकिन उसकी जो थंडर की आवाज़ है वो हमेशा हमें बाद में आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, कहीं ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द साउंड, इसलिए बिजली चमकती हुई हमें पहले नज़र आ जाती है, बट जो उसकी आवाज़ है, दैट मीन्स थंडरिंग वॉइस कम्स लेटर ऑन। Now we will study about the structure of ear, because ear help us to hear the things. So the outer part of the ear is known as pinna, then a ear canal through which the sound waves travel to the eardrum. Okay, then there is 3 attached membrane in the middle part of the ear: hammer, anvil and stirrup. Then in the inner part there is a cochlea named thing which is filled with a liquid which carries the nerve cell, and lastly it is the auditory nerve. Now we will study about the working of ear. So the upper part pinna, first it collects the sound vibrations. पहले ये क्या करता है, जितनी भी साउंड होती है उनको इकट्ठा करता है, फिर ये साउंड वेव्स ट्रेवल करती है ईयर कैनाल के थ्रू और पहुंचती है ईयर ड्रम तक। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है हैमर, हैमर जो होता है वो एक तरफ से कनेक्ट होता है ईयर ड्रम से और सेकंड तरफ से वो कनेक्ट होता है एनविल से। सो ये जो हैमर होता है इसमें वाइब्रेशंस स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले जब हैमर में वाइब्रेशन स्टार्ट होती हैं तो ऑटोमेटिकली एनविल में भी वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो एनविल होता है वो स्टिरअप से कनेक्टेड होता है थ्रू द वन एंड, इसमें भी वाइब्रेशंस होती हैं। फिर ये जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं वो ट्रैवल करके मिडिल ईयर से जाती हैं इनर ईयर में। इनर ईयर में क्या होता है, एक लिक्विड फिल होता है जिसमें बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं किसी भी साउंड के लिए। तो वो जब इस साउंड जब यहाँ पहुँच जाती है इस कोकीलिया में, जो कि क्या है, इसमें बहुत सारे नर्व सेल फिल्ड अप हैं, इसमें जब पहुँच जाती है तो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती है कि कोई साउंड हमारे ईयर में स्टक हुआ है, और हमारा ब्रेन हेल्प करता है टू रिकॉग्नाइज दैट साउंड, दैट हाउ अ ईयर वर्क।
जो बीच में ये मिडिल पार्ट है जिसमें हैमर, एंविल और स्टिरअप होते हैं, ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो साउंड को इनर एरिया में तभी जाने देती है जब क्या होता है, ये इसके बीच में, साउंड के बीच में, इनर ईयर के बीच में एक एम्पलीफायर की तरह एक्ट करती है, जिससे कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव जब हम आती है तो हम क्या करते हैं, कान बंद कर लेते हैं। तो दिस इज द थिंग ऑफ दिस हैमर, एंविल एंड स्टिरअप, कि कौन सी साउंड अंदर तक जानी चाहिए साउंड वेव्स और कौन सी नहीं जानी चाहिए। जाती तो हर तरह की साउंड है, पर हम क्या करते हैं, जल्दी से कान बंद कर लेते हैं क्योंकि हम उस साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर जब वो साउंड जाती है कोकिलिया में, जिसमें बहुत सारे नर्व सेल ऑलरेडी फिल्ड अप होते हैं लिक्विड के थ्रू, फिर ये सेंसेशन पहुंचाते हैं किसको, ऑडिटरी नर्व को, जो सुनती है, हियर करती है, कनेक्टेड होती है हमारे ब्रेन से। और ब्रेन में जब वो कनेक्शन के बाद बताते हैं कि भाई इस चीज की साउंड हमने सुनी है, वो हमें ब्रेन रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। दैट इज हाउ अ ईयर वर्क। और ये जो ईयर ड्रम होता है ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमें कोई भी नुकीली चीज़ हमें अपने ईयर में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये ईयर ड्रम बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही थिन लेयर होती है जो ब्रोक हो सकती है इसकी वजह से। इसलिए हमें अपने ईयर्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर today's topic. The rest topic we'll cover in the next video. So if you find this video useful, please give a thumbs up and please make sure to subscribe the channel. And if you want any other video that I should make a video, please let me know in the comment box. And if you have any doubt regarding any topic, please mention in the comment box. Thank you.